morning, student. Hello. Good morning. Good Good morning. morning, Good sir. morning, sir. Hello. Good morning. Okay. My voice is clear. Hello. 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 Start now. Hello. My voice is clear. Hello. Yes, student. Hello. Now voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. तो ब्लूटूथ से नहीं पकड़ रहा है. That's all. Okay, fine. चलो, let's continue. Okay, welcome Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya. I share the screen. Welcome Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, TYBCom, 5th Sem, subject Computer System and Applications. Topic is going on second module. Last select statement, some of the queries related primary key, foreign key, and that how to add the primary key, remove the primary key related, presented by Assistant Professor Bipin P. Vaiti. So we have last time completed all the related queries with functions and relational operators like clause. After that, limit clause, and now after that we have to see today the primary key related some of the table, how to add and that, then group by query, order by query. So today we can complete that sub queries related part, and next time we will come to the joins and subquery. Okay, fine. So now here they are given the some of the table creation part first, and then they say to insert the some records and then insert the column. So how to insert it and do it, see that now. Click on start, then go on all program, then MySQL, and then MySQL command line client. After that, you write the your password of the MySQL admin, enter, we get the command. Now, this is a table they are given. How to create? So
Anyone can revise the command how to create the table. First of all, we have to go in database. So we don't know which database we are using. So how to show the databases command? Anyone? Anyone can give the commands first. I want to display all database list. Show databases. Show databases. Very good. Show databases. You have to revise. आपके दिमाग में ऐसे कमांड घूमने चाहिए तभी आपको पता चले. Databases and then semicolon enter. So we get the list of the database. कौन सा database था हमारा? वो open करना है. We have to open that database. बोलो बोलो. Use data. Use which one? Direct use database. Database name. So which database name? TYBCom1. So use TYBCom1. Enter. So we get the message database change. That means database open. Now we want to show the tables. List of the tables. Show tables. Show tables. Enter. So we get only one table inside because we have already deleted the admin table. Now we are continue with the new table. So we have to create the table using this column. See that now column name, roll number, short address, phone number. They are saying roll number with the small int without sign. That means unsigned. Then varchar 10 and phone number int without sign. So roll number RNO, ADDR and PHNO. चलो कैसे बनाएंगे बताओ जरा. How to create? चलो कमांड बोलो. क्या कमांड आएगी? टेबल क्रिएशंस. हाउ टू क्रिएट द ADMN टेबल. क्रिएट tables. ADMN and then enter ब्रैकेट के अंदर सिंपल ब्रैकेट ऑल फील्ड नेम्स with the data type and constraint. तो फील्ड नेम क्या दिया है? पहला RNO small int Unsigned. small int and then unsigned. सर आपने स्पेस छोड़ा है. Of course स्पेस तो छोड़ना पड़ेगा ना. नहीं ऊपर क्रिएट टेबल के बाद. हाँ तो करना ही पड़ेगा ना. टेबल के बाद एडमिन करके टेबल का नाम है ना. क्रिएट टेबल एडमिन इज टेबल नेम ना. Yes. या तो ADMN टेबल नेम है. देखो ADMN टेबल नेम है तो वही टेबल नेम मैंने यूज किया. ब्रैकेट ओपन नीचे. कमांड कंप्लीट नहीं हुई. कमांड कंप्लीट कब होगी? जब सेमीकोलन आएगा. तो RNO स्मॉल int अनसाइंड एंटर. उसके बाद क्या आने वाला है बताओ आगे. क्या? ADDR. हाँ दैट इज सेकेंड कॉलम नेम. उसका क्या डेटा टाइप है? varchar इन द ब्रैकेट 10 कॉमा एंटर. लास्ट में क्या दिया है? PHNO फोन नंबर. उसको क्या दिया हुआ है? INT. वो भी विदाउट साइन. मतलब क्या आएगा? अनसाइन. ठीक है. अभी मुझे कॉमा देने की जरूरत है क्या? क्योंकि लास्ट कॉलम है. Semicolon. नहीं तो एंटर ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन. राइट. Yes. Enter. Now query okay. Table created successfully. So we have to see the table again. तो command आएगा show tables and enter. देखो admin करके table दिखाई दे रहा है. Is it clear? बराबर. Yes sir. या तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया. आगे की कमांड देखते हैं. चलो उन्होंने क्या बताया. देखो क्या बताया. add record 5 records to the table with data of roll number 4 first and roll number 2 and then 3 and then 1 and 5. मतलब any order में data insert करने बोला हुआ. any order. okay so देते. तो कमांड में हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट सब रिकॉर्ड भी एक्सर्ट इंसर्ट कर सकते. एक भी कर सकते. क्या क्या हम लोग को डालना है अगर देखना है तो डिस्क्राइब एडमिन करके रखोगे और तो हम लोग को पता चलेगा क्या क्या डालना है. रोल नंबर, एड्रेस और फोन नंबर. चलो डालते हैं. कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं? तो इंसर्ट इनटू क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. रिकॉर्ड टेबल के अंदर रो एक रो रिकॉर्ड में डालना है. तो इंसर्ट इनटू एडमिन टेबल नेम. फिर क्या आएगा? वैल्यूज
और हम लोग एक एक ही डालते पहले, चलो एक एक। तो पहले बोला है उन्होंने रोल नंबर 4 का पहले डालने बोला है, तो रोल नंबर 4, फिर उसके बाद उसका क्या है, करजत करके एड्रेस है, बराबर। फिर उसके Yep. बाद उसका कॉमा, करजत मैंने कोट्स में लिखा है, बराबर है क्या? Yes, sir. क्यों? एड्रेस है ना, टेक्स्ट वैल्यू शुड बी कम इन द सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है बोला, फोन नंबर। फोन नंबर क्या होगा, तो जो भी फोन नंबर उन्होंने दिया है 29993668, ओके, ब्रैकेट क्लोज। एक एक रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, सेमीकोलन, एंटर, एक रिकॉर्ड हो गया। अगर उनको सब रिकॉर्ड एक साथ डालने हैं तो भी कमांड वही आएगी, खाली हम लोग को ब्रैकेट 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 के अंदर डालना है। तो अभी हम लोग उसके बाद सारे रिकॉर्ड एक साथ डाल रहे हैं। एक रिकॉर्ड आ गया, अभी इंसर्ट इनटू एडमिन ADMN वैल्यूज, और उसके बाद हम लोग सारे रिकॉर्ड एक साथ डालेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड एक साथ डालेंगे। देखो इंसर्ट इनटू वैल्यूज, फिर नीचे आता हूं मैं ब्रैकेट, ओके। देन ब्रैकेट में अभी फोर्थ हो गया, तो सेकेंड अंधेरी, अंधेरी। देन आफ्टर दैट फोन नंबर 28282554, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉमा दे रहा हूँ, मतलब मुझे क्या करना है, कॉमा दे रहा हूँ मतलब आफ्टर ब्रैकेट के बाद कंटिन्यू करना है। तो ब्रैकेट अगेन ओपन, ब्रैकेट के अंदर तीसरा वाला रिकॉर्ड, थर्ड। देन उसके अंदर लिखा है ठाणे, थाना, थाना दिया है, कॉमा, फिर 25565567, ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉमा, एंटर, और एक रिकॉर्ड डालना है, और रिकॉर्ड कौन सा है, 5। देन अंधेरी, कोट्स के अंदर अंधेरी, देन कॉमा, क्या है लास्ट वन, ओके, 28283478, ब्रैकेट क्लोज, और एक रिकॉर्ड है क्या, 5 नहीं है, अभी रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या करना चाहिए, एक तो सेमीकोलन एंड देन क्लोज इट, कॉमा नहीं देना है। इज इट क्लियर? सर वो ओके, वन थाना लिखा अमन है वो। शर्मा, वीडियो अपना ऑफ रखो, ओके। हाँ बोले, क्या हुआ? सर वन थाना लिखा है वो। किधर है वन थाना, किधर है क्या? अच्छा है, बराबर, एक कॉमा रह गया, तो ठीक है। अभी हम लोग कॉमा करके नीचे आते हैं, ब्रैकेट, अभी सेमीकोलन एंटर नहीं किया था इसलिए अच्छा है, नहीं तो वापस लिखना पड़ेगा, 1 कॉमा थाना एंड देन कॉमा 26666 ब्रैकेट क्लोज, नाउ सेमीकोलन। अभी कोई भी ऑर्डर में हमारा डेटा है, राइट, ऑल 4 डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया। अभी देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करना है, सिलेक्ट स्टार Admin. एडमिन, ठीक है, सेमीकोलन। देखो दिखाई दे रहा है अभी रिकॉर्ड 42351, कोई भी ऑर्डर में है, यस, Yes, sir. ओके। तो अभी हम लोग ने सिलेक्ट स्टार करने के बाद हम लोग ने प्राइमरी की किसी को दिया था क्या? नहीं, इसीलिए रिकॉर्ड में 4 डुप्लीकेट आ सकता था, डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाला तो आ सकता था क्या? यस आ सकता था, क्योंकि Yes, sir, आ सकता है. हम लोगों ने प्राइमरी की दिया नहीं था। अभी हम लोग को प्राइमरी की ऐड करना है, तो कमांड देखो, उन्होंने मेक रोल नंबर एज द प्राइमरी की फॉर एडमिन। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्टर, अल्टर करके ऐड करना पड़ेगा, प्राइमरी की ऐड करना पड़ेगा। तो चलो अल्टर करके हम लोग कैसे ऐड करते हैं वो देखो, रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अभी प्राइमरी की सेट करना है। अल्टर टेबल एडमिन ऐड प्राइमरी की, एंड देन इसके लिए प्राइमरी की देना है उस फील्ड नेम Roll का number. नाम, ब्रैकेट के अंदर रोल नंबर, तो फील्ड नेम का नाम आ गया, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके। अभी हम लोग डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डाल सकते, रोल नंबर 1 है तो रोल नंबर 1 वापस रिपीट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। और प्राइमरी की जैसे ही डालोगे क्या हो गया, क्या हो गया, अरेंजिंग Roll नहीं number हुआ, change हो गया. हाँ रोल नंबर चेंज नहीं हुआ, हाँ, और Assignment. ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक है। इट शुड प्राइमरी की इट शुड अरेंज विद द ऑर्डरिंग ऑर्डर लोवेस्ट टू हाईएस्ट। देखो रोल नंबर 1 2 3 4 आपका क्या हुआ, अरेंजिंग हो गया, और 1 का रिकॉर्ड पहले आया, 2 बाद में, 3 बाद में, 4 बाद में, क्योंकि प्राइमरी की ऑर्डर में रिकॉर्ड आपको अरेंज करके दे रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट
उसके बाद आपको प्राइमरी की अगर चेक करना है तो उसमें प्राइमरी की में अंदर नल वैल्यू नहीं डाल सकते, तो डिस्क्राइब एडमिन अगर हम लोगों ने पहले वापस किया तो चेक कर सकते हो कि रोल नंबर को हम लोगों ने प्राइमरी की दिया है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे नल वैल्यू नो दिखा रहा है, बाकी सबको नल वैल्यू रख सकते हैं। ओके, सपोज मैं 6 रोल नंबर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं 6 नंबर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू एडमिन, ओके, वैल्यूज और 6। उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं लिखते, ब्लैंक 60 खाली लिखते, एंटर, एरर आ गया, रोज और डो, अच्छा डू नॉट मैच द वैल्यू, ओके वेट, इंसर्ट इनटू एडमिन वैल्यू 6 कॉमा नल कॉमा नल, एंटर, रिकॉर्ड ऐड हो गया। अभी हम लोग सिलेक्ट स्टार करके देखते हैं तो हम लोग को 6 रोल नंबर आ गया, लेकिन एड्रेस मालूम नहीं है, फोन नंबर मालूम नहीं है, क्या आ गया रिकॉर्ड, ब्लैंक, नल वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो Yes, एड्रेस sir. फोन नंबर को नल रख सकते हैं, लेकिन रोल नंबर को नल रख सकते हैं क्या, नहीं, नहीं. बिकॉज इट इज प्राइमरी की, वी आर सेफ। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको उसके बाद का दूसरा टेबल दिया हुआ है और उसके साथ में बहुत सारे हम लोग को आगे फॉरेन की के बारे में बताया है। तो प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है वो पहले डेफिनेशन बताता हूँ और फिर दोनों टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की का रोल क्या है वो एक्सप्लेन करना है मुझे आज। ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम जॉइंस, very important, joining the two table, merging records and all that parts we can do it clear. So now प्राइमरी की क्या होती है, क्या बताया था प्राइमरी की, यहाँ पे डार्क में दिया है देखो, प्राइमरी की हैज अ डिफरेंट यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो टेबल। क्या बताया है, प्राइमरी की हैज अ डिफरेंट यूनिक वैल्यू। आप प्राइमरी की में जो भी फील्ड नेम को प्राइमरी की देते हो उसमें वो यूनिक वैल्यू होती है। रोल नंबर में 1 इज अ यूनिक, 2 इज अ यूनिक, 3 इज अ यूनिक, फॉर डुप्लीकेट नहीं आएगा फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। So no two rows of table with the primary key are exact duplicates of one another. इसलिए हर एक रिकॉर्ड में प्राइमरी की आर एग्जैक्ट, वी कैन नॉट क्रिएट डुप्लीकेट फॉर दैट रिकॉर्ड। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. या दैट इज प्राइमरी। यस सर। फॉरेन की क्या होती है, तो फॉरेन की के बारे में भी हम लोग जानना चाहते हैं। तो फॉरेन की क्या होती है कि हम लोग को दो, ठीक है, प्राइमरी की एक टेबल से दूसरे टेबल में सेम प्राइमरी की देंगे तो अपने आप जॉइंट्स होगा, अपने आप रिलेशन क्रिएट होगा। लेकिन अगर दोनों टेबल में अलग अलग प्राइमरी की है, जैसे यहाँ पे ब्रांच टेबल है, ओके, ब्रांच टेबल में प्राइमरी की ब्रांच कोड को दिया है और एडमिन टेबल में प्राइमरी की हम लोगों ने किसको दिया हुआ है, रोल नंबर को दिया हुआ है। तो दोनों अगर रिकॉर्ड मर्ज करने हैं तो ब्रांच कोड अलग है और रोल नंबर अलग है, हाउ वी कैन मर्ज, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ब्रांच कोड का वैल्यू अगर किधर भी मैच हो रहा है तो उसको रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी दूसरे टेबल के कॉलम के फील्ड वैल्यूज का अगर रिकॉर्ड वैल्यू मैच हो रहा है तो वी कैन मर्ज द रिकॉर्ड, उसको फॉरेन की बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे फॉरेन की भी एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए दे सकते हैं। तो उन्होंने दिया है टेबल कैन कंटेन मोर देन वन प्राइमरी की इफ इट इज रिलेटेड टू वन टेबल। एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकता है, प्राइमरी की एक ही हो सकता है। सो प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्रिएट अ पैरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, उससे पैरेंट रिलेशनशिप क्रिएट कर दैट कंटेन इट। सो फॉरेन की क्या होता है, सो फॉरेन की ऑल्सो कैन बी कॉम्बिनेशन, सॉरी हाँ या कॉम्बिनेशन कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड की, उसको हम लोग कंपाउंड की बोलते हैं। तो ये कंपाउंड की होता क्या है, तो पहले ही लाइन में उन्होंने दिया है कॉलम इन अ वन टेबल हुज वैल्यू, ओके, सेकेंड टेबल का कॉलम इन अ वन टेबल whose value matches the primary key in some other table, दूसरे टेबल के प्राइमरी की के वैल्यू से मैच हो रहा है। हमारे एक टेबल के अंदर की कोई तो वैल्यू, कोई तो कॉलम, उसकी फील्ड वैल्यू दूसरे टेबल के प्राइमरी की से मैच हो रही है, तो दैट टेबल इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। कुछ समझ में आया क्या बताया ये? अगर दो टेबल मर्ज करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो सेकेंड टेबल के कॉलम में अगर कोई भी वैल्यू पहले टेबल के प्राइमरी की में मैच हो रही है तो उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं।
और फॉरेन की से कंपाउंड कॉम्बिनेशन कंपाउंड की रेडी हो जाती है और वो टेबल क्या कर सकता है, उससे मर्ज रिकॉर्ड मर्जिंग के लिए काम आ जाता है, उसी को फॉरेन आया समझ में। खाली डेफिनेशन बताया, अभी एग्जाम्पल के साथ में भी हम लोग को देखना है। तो एग्जाम्पल के साथ में हम लोग को बाद में आने वाला है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक रिलेटेड टेबल बनाया हुआ है उन्होंने, वो क्रिएट कर लेते हैं, ये हम लोग को लगने वाला। तो पहला टेबल दिया है ब्रांच इन अ जी डेटाबेस। जी डेटाबेस क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ अभी, क्या दिया है, क्रिएट न्यू टेबल कॉल्ड ब्रांच इन जी डेटाबेस, बोलो जल्दी। यूज जी। यूज जी, लेकिन जी है ही नहीं। क्रिएट में करना पड़ेगा। यस वेरी गुड, क्रिएट डेटाबेस करना पड़ेगा। तो क्रिएट डेटाबेस जी, एंटर, राइट। अभी हम लोग को डेटाबेस तो बन गया, अभी हम लोग को उसको ओपन करना है, तो यूज जी। अभी हमारा डेटाबेस चेंज हो गया, हमारा पहला वाला डेटाबेस नहीं है, अभी कौन सा डेटाबेस है हमारा, जी करके आ गया। और जी के अंदर अभी क्या है, ब्रांच टेबल बनाना है। क्या करना है, ब्रांच टेबल, डेटाबेस आ गया हमारा, ओपन हो गया, अभी ब्रांच टेबल। तो ये ऐसे ब्रांच टेबल हम लोग को बनाना है। तो हम लोग को क्रिएट क्या क्या दिया है उन्होंने, बहुत सारी चीज दी है। देखो ऐसे आपको टेबल बनाने के लिए अगर 2 टेबल आते हैं तो 8 मार्क, या 1 टेबल आता है तो भी 8 मार्क मिल सकते हैं। खाली इतना कमांड का 8 मार्क है, आप सोच सकते हो 8 मार्क या 7 मार्क के लिए कभी कभी ऐसे सवाल पूछते, क्रिएट टेबल। ऐसे आपको कॉलम नेम दिया है, कॉलम टाइप दिया है, और टाइप और कॉलम देख के आपको टेबल बनाना है, तो उसके लिए 8 या 10, कभी कभी 2 टेबल आते हैं और 4-4 मार्क में डिवाइड होते हैं। इज इट क्लियर? सो क्रिएट टेबल ब्रांच कैसे बनाना है, आप देख के कॉलम देख के भी बना सकते हो। चलो बनाते हैं अभी, क्रिएट टेबल, क्या नाम है, ब्रांच, एंटर, ब्रैकेट ओपन, एंटर। पहला फील्ड नेम क्या है, पहला फील्ड नेम देखो, ब्रांच कोड। ब्रांच कोड, ब्रांच कोड। br_कोड जैसे दिया है वैसे ही करेंगे। उसके बाद क्या दिया है उसका डेटा टाइप, स्पेस देखें, स्मॉल इंटीजर, स्मॉल INT, INT, अनसाइंड, अनसाइंड, प्राइमरी और की। प्राइमरी की भी इधर सेट कर सकते हो डायरेक्ट, राइट। देन यस, वैल्यू इज मस्ट, वैल्यू इज मस्ट, मस्ट मतलब वैल्यू नल, नल नहीं है आएगा। हाँ तो नॉट नल, प्राइमरी की दिया मतलब नॉट नल लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो नॉट नल ही आएगा आपने, बराबर ना। देन कॉमा, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन, लोकेशन, फिर क्या है, वेर कैर Varchar 20, 20, वेरी गुड, कॉमा, एंटर। तीसरा जोन, 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 जोन में क्या है, वेर कैर Varchar 10, 10, कॉमा, एंटर। ओके, ब्रांच है, ब्रांच अंडरस्कोर br_head, हेड, हेड, INT इन द 3, ब्रैकेट 3 मतलब 3 डिजिट्स, कॉमा, आगे, आगे क्या है, टारगेट, 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 डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल मतलब पॉइंट में देना है। पॉइंट, 10,2 मतलब 8 डिजिट्स एंड 2 डेसिमल, 8 डिजिट्स एंड 2 डेसिमल, 2 डेसिमल, कॉमा। उसके बाद एक्चुअल, एक्चुअल क्या है, अगेन डेसिमल, डेसिमल अगेन 10,2 मतलब 8 10,2, डिजिट्स एंड 2 डेसिमल। आगे कुछ है नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एंटर, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। एंटर। देखो क्वेरी ओके, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। शो टेबल्स करके देखना है तो आप देख सकते हो, और जी डेटाबेस में ब्रांच टेबल क्रिएट हो गया, ओके, विथ प्राइमरी की। ओके, अगर डिस्क्राइब, अगर आप लिखते हो डिस्क्राइब ब्रांच, देखो ये सारे कमांड कॉमन कमांड है जो हम लोग वापिस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देखने के लिए बन गया है। ऊपर प्राइमरी की दिया है, अनसाइन, जैसे उन्होंने बताया था वैसे हम लोग ने क्रिएट किया हुआ। इज इट क्लियर? ओके, यस चलो, सर। ओके नाउ यस सर। ये सारी चीजें हो गई आपकी, और उन्होंने रिकॉर्ड इंसर्ट किए, तो हम लोग रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेते ताकि हम लोग को मर्ज करने के लिए आगे काम आ जाए। तो इंसर्ट इनटू ब्रांच, फटाफट इंसर्ट करते, रिकॉर्ड इंसर्ट करना। ओके, उन्होंने रिकॉर्ड दिए हैं, आप देख लो रिकॉर्ड, में इंसर्ट कर रहा हूँ। या नाउ ये भी इंसर्ट इनटू ब्रांच, क्या करना है, वैल्यूज, और क्या क्या वैल्यूज डालने हैं। पहला वाला वैल्यूज क्या है, 22, ब्रांच कोड बोरीवली, बोरीवली,
फिर कॉमा, उसके बाद क्या दिया है, जोन, जोन है वेस्टर्न, ओके वेस्टर्न। फिर क्या दिया है, ब्रांच हेड, हेड उन्होंने INT 3 डिजिट्स 106। फिर उसके बाद टारगेट वैल्यू, ओके 20,000। ये कैसे, मतलब ये जो सेल्समैन होते हैं उनको टारगेट वैल्यू ये सब दिया रहता है उसके लिए। 2 लाख है, क्या है, 2 लाख है बराबर, 1 2 3 4 5, ओके ना 1,70,000 70,000. ब्रैकेट क्लोज कॉमा, एक साथ इंसर्ट कर लेते हैं, मुझे जल्दी होएगा। देन कॉमा 34 कॉमा मुलुंड, ठीक है। ये क्यों कर रहा, मतलब मैं बाद में हम लोग को मर्ज फॉरेन की से मैच करने के लिए वगैरह काम आने वाला है, इसके लिए वही रिकॉर्ड डालता हूँ। सेंट्रल 104, देन 2,60,000, देन कॉमा 2,80,000 ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंटर। उसके बाद है हमारा 20 कॉमा क्या है, पार्ले, विरले पार्ले, एंड पार्ले के बाद वेस्टर्न, ओके। देन 105 कॉमा 3,30,000 कॉमा, देन 3 लाख अगेन 30,000, मतलब सेम दिया है 30,000 ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंटर। आफ्टर दैट अगेन ब्रैकेट 25 थाने कॉमा सेंट्रल कॉमा 108 कॉमा 2,50,000 एंड 1,70,000। ओनली टेक्स्ट वैल्यू कोट्स में आएगा, बाकी सब नॉर्मली नंबर वैल्यू डायरेक्ट। देन अगेन कॉमा, और लास्ट रह गया वसई 18, अगेन ब्रैकेट के अंदर 18 कॉमा। ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है, अगर एक भी रॉन्ग हो गया तो वापस सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कमांड है, अलग हनाने नहीं कर रहे हम लोग, एक एक रिकॉर्ड नहीं डाल रहे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक साथ। अप एरो की करने का, प्रैक्टिकल में अप एरो की इज अलाउड। 25,000 और एक में नल वैल्यू दे रहे, नल ब्लैक, ओके ब्रैकेट क्लोज खत्म सेमीकोलन एंटर। 5 रोज आर इंसर्टेड। देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच, रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हुए दिखाई दे रहे, इज इट क्लियर। और ब्रांच कोड के हिसाब से असेंडिंग हो गया, क्योंकि ब्रांच कोड इज हैज अ प्राइमरी की, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी Yes, sir. Yes, sir. यस, अभी सेकेंड टेबल बनाना है, उसको हम लोग को प्राइमरी की सेट करनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे जॉइंट्स बीन्स करने पड़ेंगे, तो हम लोग को सेकेंड टेबल, तो एक टेबल हो गया। अभी सेकेंड टेबल जो है आप देख सकते हो, यहाँ फॉरेन की बताया हुआ, तो फॉरेन की के कंस्ट्रेंट में हम लोग को कैसे मैच करना है। तो देखो ये टेबल है, इसमें एम्प्लॉय नंबर इज प्राइमरी की वगैरह दिया है, बट यहाँ पे देख सकते हो ब्रांच में कुछ रिपीट ब्रांच की वैल्यू देने वाले, वो कोड है ना वैल्यू, वो कुछ वैल्यू मैच होने वाले, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड दोनों टेबल का मर्ज करके दिखा सकते हैं। तो हम लोग ये टेबल भी बनाना पड़ेगा। चलो एनीवन कैन से दैट, कैसे टेबल बनाएंगे, ये क्या नाम है टेबल का, ये एम्प्लॉय 1, Create table employee 1. क्रिएट टेबल EMP1 एंटर ब्रैकेट ओपन एंटर, बोलो आगे। ENO, E_NO, NO, हाँ comma, small integer, कॉमा नहीं आएगा, स्पेस, स्मॉल sorry. INT एंड अनसाइन, unsigned, कॉमा comma, एंड name, नेम varchar varchar 20, 20 कॉमा comma, age, एज स्मॉल INT और आगे अनसाइन। unsigned, कंस्ट्रेंट के अंदर स्पेस, लास्ट में कॉलम खत्म हो जाता है सब कुछ, तो कॉम एंड एंटर। रिपीट अंडरस्कोर underscore bar, BR, उसके अंदर अगेन स्मॉल INT अनसाइंड और फॉरेन की देना है। देख रहे अभी उन्होंने कैसे Yes. दिया है, देखो फॉरेन की दिया है क्या इधर, यस उन्होंने दिया है, लेकिन कभी दिया है, पहले नहीं दिया है, नीचे जाने के बाद दिया है, ओके उनको दिखाया हुआ। तो हम लोग भी एक्चुअली कंस्टेंट ये प्राइमरी की ऐसे दिया है ना, वो एक्चुअली पीके अलग से देना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई इश्यू नहीं, ओके हम लोगों ने प्राइमरी की दिया है ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो अदरवाइज ऐसे देखो नीचे दिया है, देखो कंस्टेंट कीवर्ड से कंस्टेंट पीके प्राइमरी की फॉरेन, मतलब फॉरेन की नीचे देना पड़े, फॉरेन की एंड किसके लिए फॉरेन की, रिपीट अंडरस्कोर बीआर के। ओके, सो यहाँ पे अगेन कॉमा, कंटिन्यू, और आगे क्या है, रिपीट अंडरस्कोर के बाद डेजिग्नेशन DHG, डेजिग्नेशन क्या देना है, varchar 10, एक कॉमा, आगे उसके बाद है ज्वाइनिंग डेट DT, डेट करके डेटा टाइप है जहाँ पे ज्वाइनिंग डेट देंगे, फिर बॉस आईडी, ओके, बॉस अंडरस्कोर आईडी स्मॉल INT कॉमा, और लास्ट है जेंडर GND कैर F1 मतलब मेल फीमेल, खत्म, फिर ब्रैकेट, सॉरी अभी हम लोग ने कॉमा देना चाहिए था, नहीं दिया, क्यों बताओ कॉमा देना चाहिए था, आगे कंस्ट्रेंट देना है ना हम लोग को रेफरेंस के साथ में, वो दिया नहीं, तो हम लोग अभी देना पड़ेगा, हम लोग कैसे देंगे, कॉमा दिया मैंने, एंटर किया, कंप्लीट नहीं हुआ, डोंट वरी, कंप्लीट कब होगा जब कमांड, एक्चुअली बाजू में ही कॉमा देना चाहिए था, मैंने उधर कॉमा दिया और कंटिन्यू कर रहा, कोई प्रॉब्लम। नाउ कंस्ट्रेंट करके कीवर्ड है, प्राइमरी की ऑलरेडी दिया हुआ है तो फॉरेन की देते हैं, फॉरेन की के लिए नाम भी दे रहे हो, फॉरेन की ब्रांच अंडरस्कोर कोड, और फिर फॉरेन की दे रहे हैं, फॉरेन की, और किसके लिए फॉरेन की दे रहे हैं, फॉरेन की, रिपीट बार यस, रिपीट अंडरस्कोर BR, ओके, और विथ रेफरेंसेस, किसके रेफरेंस में दे रहे हैं, रेफरेंसेस ब्रांच कोड, तो रेफरेंसेस मालूम पड़ा कि ये टेबल का नाम ब्रांच है क्या, नहीं, नहीं, अब पहले वाले टेबल का, तो पहले वाले टेबल का नाम तो पहले वाले टेबल का रेफरेंस, टेबल नेम रेफरेंसेस ब्रांच, और उसके फील्ड नेम का नाम दे रहे हैं ब्रांच अंडरस्कोर कोड, तो किससे वैल्यू मैच करना बोल रहे हैं, अभी के टेबल का जो रिपीट अंडरस्कोर BR है उससे किसको मैच करना है, पहले वाले टेबल का ब्रांच कोड मैच करना है, आया समझ में, दैट इज हाँ टू सर, वैल्यूज दे आर मैचिंग। सर प्राइमरी की ने लिखा। नहीं लिखा क्योंकि हम लोग ने प्राइमरी के ऊपर सेट किया था, अच्छा हाँ नहीं है, नहीं किया था, नहीं, हाँ नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम लोग को गलत हो गया तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वापस रिपीट कर सकते हैं, मैं एरर आ जाएगा, मैं कुछ भी लिखता हूँ और @ डालता हूँ और बाहर आता हूँ, सेमीकोलन देके एरर आएगा, ओके, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन कंट्रोल D, बाहर आना चाहिए था, कैसे बाहर आएगा अभी, रेफरेंसेस कंट्रोल Z करके भी नहीं आ रहा है, कंट्रोल D करके भी नहीं है, कंट्रोल C, अच्छा कंट्रोल C से बंद हो गया, ठीक है, हम लोग अभी ये कमांड रिपीट करने वाले हैं फटाफट, टेंशन मत लो, वापिस MySQL कमांड लाइन एडमिन, किधर गया, कैप्स लॉक, ओके, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट एडमिन, हम लोगों ने गलती एक प्राइमरी की सेट नहीं किया था इसलिए वापस बाहर आके कर रहे हैं, अभी हम लोग को डेटाबेस का नाम G है तो यूज G, देन आफ्टर दैट शो टेबल्स, टेबल्स का नाम है, पहला वाला टेबल्स का नाम है ब्रांच, अभी वाला टेबल बना रहे हैं उसमें क्रिएट टेबल EMP1 ब्रैकेट ओपन, अभी फटाफट मैं लिखता हूँ और बना देता हूँ, ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा, फटाफट बना, नाउ पहला वन क्या दिया था, E_NO स्मॉल INT वन वर्ड है, अनसाइन नॉट नल मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है, नेम varchar इन द ब्रैकेट 20 कॉमा, नॉट नल मतलब प्राइमरी की सेट नहीं किया है उसके पहले ही हम लोग नॉट नल वैल्यू ब्लैंक नहीं रखना चाहिए, नाउ एज स्मॉल INT अनसाइन, उसके बाद अगेन कॉमा, एंटर, रिपीट अंडरस्कोर BR स्मॉल INT अनसाइंड, ओके, कॉमा, एंटर, फिर डेजिग्नेशंस varchar 10 कॉमा, एंटर, फिर बॉस अंडरस्कोर ID स्मॉल INT
कॉमा, फिर सर जेंडर। जॉइन डेट। अच्छा ज्वाइन डेट रह गया, ठीक है आप भी डाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज हो जाएगा। ज्वाइन अंडरस्कोर dt डेट कॉमा, एंटर, बॉस आईडी हो चुका है, जेंडर कैर 1 ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। अभी कंस्ट्रेंट है, अभी देखो कंस्ट्रेंट, सो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट स्पेलिंग है CONSTRAINT, कंस्ट्रेंट प्राइमरी की पहले सेट कर रहे हैं, तो PK अंडरस्कोर E_NO, फिर दे रहे स्पेस, ये नाम है अलाइस नेम है, फिर प्राइमरी की, और प्राइमरी की के अंदर कौन सा एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की पहले दे रहे हैं, ओके, ENO E_NO ब्रैकेट कॉमा, और भी कंस्ट्रेंट क्या देना है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की दे रहे FK अंडरस्कोर BR अंडरस्कोर कोड, और फॉरेन की दे रहे फॉरेन की FOREIGN की, फिर किसको दे रहे रिपीट अंडरस्कोर BR, ओके, और फिर रेफरेंसेस, ये दोनों टेबल एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की हुआ, रिपीट अंडरस्कोर BR हो गया, रिपीट अंडरस्कोर BR इज अ फॉरेन की, और फॉरेन की को मैच करने के लिए रेफरेंसेस टेबल का दे रहे हैं, रेफरेंसेस ब्रांच, ब्रांच करके टेबल है, उसके अंदर के BR अंडरस्कोर कोड वैल्यू को मैच कर, ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। एरर कहाँ पे आया, करस्पॉन्डिंग या सिंटैक्स एरर, कहाँ पे सिंटैक्स एरर आया, रेफरेंसेस का स्पेलिंग बराबर है REFER, रेफरेंस का स्पेलिंग हो रहा हूँ, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम, देखो अभी आप पैरों की कर रहा हूँ, एंटर, नीचे एंटर, नीचे एंटर, फटाफट, मतलब मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर, रेफरेंसेस का स्पेलिंग रॉन्ग, ओके, नेक्स्ट, एंटर 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 एंटर, कंस्टेंट एंटर, फॉरेन के एंटर, और रेफरेंसेस, अभी स्पेलिंग क्लियर कर, REFERENCS, हाँ हो गया, कोई क्वेरी, ओके, यस यस Yes, स्टूडेंट, sir. ओके, यस सर। ये हुआ क्रिएट फॉरेन की। अगर हम लोग ने अभी डिस्क्राइब EMP1 किया, तो हम लोग को देख सकते हो, हम लोग को दोनों चीजें आपको दिखाई देगी, एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की, और रिपीट अंडरस्कोर मल्टी MUL करके आया, MUL मतलब ही फॉरेन की सेट किया, मल्टीपल प्राइमरी की, ठीक है, क्लियर, हेलो स्टूडेंट, यस, ओके, तो दोनों टेबल अभी मर्ज कर सकते हैं। अभी इसमें जो रिकॉर्ड हम लोग डालेंगे उसके साथ वो वैल्यू मैच करेगा ब्रांच कोड का, तो सम ऑफ द ब्रांच कोड वी हैव टू राइट ओवर देयर, ठीक है, तो अभी हम लोग ये थोड़े वैल्यू फटाफट डाल देते हैं, और फिर हमारे जो रिलेटेड क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग वगैरह हो गए वो नेक्स्ट टाइम होने वाले हैं, ओके, लेकिन हम लोग पहले अभी रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं फटाफट, और फिर ऑर्डर बाय और वो क्लॉजेस देख लेते हैं, मतलब आज का क्लॉजेस का काम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ज्वाइनिंग चालू होगा, इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज डाल के हम लोग खत्म कर, तो ये है वैल्यूज, ओके, नाउ EMP1 एंटर, values bracket open, 105 is a employee number, then Tania Jones is your employee name, comma, then 24 हुआ age, comma, repeat underscore branch, that is a branch code। अच्छा हम लोग का एक गलती ज्वाइनिंग डेट का भी किया है, वो देखना है, बॉस आईडी, एक मिनट, रिपीट जॉब्स हो गया 24, एज हो गया, रिपीट अंडरस्कोर BR 20 दिया है, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफिसर, कॉमा, और डेजिग्नेशन के बाद बॉस आईडी है, हम लोग बॉस आईडी क्या कर रहे हैं 106 पहले लिख रहे हैं, और फिर हम लोग ईयर लिख रहे हैं, क्यों पता चला आपको, क्योंकि हम लोग ने बॉस आईडी और ज्वाइनिंग डेट ऊपर नीचे किया है, so 2002 comma sorry dash 12 dash 10, that is called the 10th December 2002, comma, आगे क्या है F for female, ठीक है, फीमेल। हो गया, ब्रैकेट बंद, कॉमा,
एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही हम लोग दूसरा रिकॉर्ड 109 कॉमा शानीजा हसानी कॉमा कोड्स 1 कॉमा 23 कॉमा 22 कॉमा अकाउंटेंट देन कॉमा उसके बाद 104 बॉस आईडी देन एफ फीमेल देन सर ब्रैकेट हसानी का नेम रॉन्ग है। हसानी का क्या लिखा है वो तो चलेगा NANI। हसनानी ओके हाँ हसनानी। ओके ब्रैकेट नल कॉमा आगे 102 देन मुस्कान गुप्ता देन कॉमा 21 कॉमा 25 कॉमा ये भी अकाउंटेंट ही है कॉमा उसके पहले हम लोग को बॉस आईडी लिखना पड़ेगा 108 देन 2006 डैश 07 डैश 14 और वो भी फीमेल ओके ब्रैकेट लो सॉरी कॉमा नहीं लिखा देखो कॉमा सब कुछ चेक करना होगा ब्रैकेट कॉमा चलो और एक लिखते हैं और उसके बाद स्टॉप कर दे क्योंकि बहुत सारे हैं। अब अकाउंटेंट ऑफिसर अभी में एक मैनेजर लिखता ऑफिसर अकाउंटेंट हुआ अभी मैं मैनेजर लेता 106 कॉमा अब इंसर्ट बाद में भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं देन सांसिया डिसोजा डिसा सांसिया डिसा एंड देन कॉमा 30 कॉमा 22 कॉमा कोट्स के अंदर मैनेजर कॉमा कोट्स के अंदर 1999 कॉमा 707 डैश 09 डैश सॉरी कोट्स कॉमा अभी यहाँ पे नल अच्छा पहले बॉस आईडी लिखना था बॉस आईडी लिखा नहीं मैनेजर के बाद आपका क्या आना चाहिए था बॉस आईडी नल रखा है और फिर उन्होंने ईयर joining date 99/7-9 okay and then female comma f ब्रैकेट अभी मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ एंटर क्या हुआ कॉलम डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 2 रो 2 में क्या गड़बड़ है अच्छा ईयर लिखा नहीं था चलो कोई अभी ये क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं प्रैक्टिकल करते हुआ आपको खाली अप एरो की करना हो देन वैल्यूज एंटर सेकेंड कॉलम में हम लोग ने डेट नहीं लिखा देखो 104 के बाद 2005 6-30 कोड्स कॉमा वी नाउ एंटर नाउ कंटिन्यू 109 के बाद हम लोग को क्या है 109 के बाद 102 मुस्कान गुप्ता एंटर फिर 106 सेमीकोलन एंटर क्वेरी ओके हो गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 रिकॉर्ड आ गए ओके हाँ अभी कौन सी वैल्यू मैच होनी चाहिए बॉस आईडी ये देखो एक्चुअल में बॉस आईडी तो यहाँ पे भी हम लोग ने गलती किया है कि ये रिपीट अंडरस्कोर ब्रांच के वैल्यू को मैच करने दिया और वो है बॉस आईडी तो हम लोग को बाद में चेंज करना पड़ेगा करते पहले हम लोग का ये सारी चीजें हो गई है नाउ ये सारी चीजें होने के बाद आगे कुछ सिंपल कंडीशंस क्वेरीज दिए उसको हम लोग देख सकते हैं और आगे ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय क्लॉज खत्म करेंगे आज 5 मिनट है मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच वेयर लोकेशन इज ग्रेटर देन n मतलब आफ्टर n वाले लोकेशंस के बारे में उनको देखना है आफ्टर n बोला है आफ्टर n ओके जो n नाम से स्टार्ट होते हैं आफ्टर n के उनके रिकॉर्ड दिखाई देंगे तो हम लोग लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच ओके वेयर लोकेशन इज ग्रेटर देन कोट्स के अंदर n मतलब आफ्टर n के जितने भी रिकॉर्ड है वो दिखाई दे रहे कौन आए वसई पार्ला और ठाणे n के बाद देखो n के बाद v है p है t है वो दिखाई दे रहे गॉट इट यस स्टूडेंट हेलो यस सर यस सर सपोज n के बदले हम लोग ने m लिखा m मतलब मुलुंड भी आ गया मुलुंड ओके
क्लियर? ओके, नेक्स्ट अभी सॉर्टिंग क्वेरी ऑर्डर बाय, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बाय मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में। तो अगर हम लोग ने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय मतलब क्या हुआ, ऑर्डर बाय लोकेशन वाइज। अभी हम लोग का लोकेशन वाइज नहीं था, अभी लोकेशन वाइज ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग, सॉरी लोकेशन का स्पेलिंग बराबर LOCA, ऑर्डर बाय लोकेशन, अच्छा वेयर क्लॉज लिखा, वेयर नहीं लिखना था, सॉरी वेयर क्लॉज नहीं है अभी, ऑर्डर बाय क्लॉज, वेयर क्लॉज नहीं है अभी, ऑर्डर बाय लोकेशन वाइज। तो लोकेशन वाइज में B पहले आया, M बाद में आया, P पहले आया, मतलब इट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लोकेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लोकेशन में आ गए, दिख रहे हैं? यस स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच ऑर्डर बाय लोकेशन, असेंडिंग, उल्टा करना है तो डिसेंडिंग में। तो आगे ऑर्डर बाय लोकेशन के आगे आपको खाली DESC यानी कि डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, DSC, सॉरी ऑर्डर बाय DSC पहले करना है, DSC, हाँ कैसे लिखते हो DSC, यस बराबर है, ऑर्डर बाय DSC, क्यों नहीं आया वो, ऑर्डर बाय लोकेशन डी, अच्छा वेयर क्लॉज दिया था इसके लिए, ओके, ऑर्डर बाय लोकेशन DSC, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच ऑर्डर बाय लोकेशन DSC, DSC में क्या हो गया, उल्टे ऑर्डर में Z to A, VTPMB, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. या सपोज हम लोग को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में कुछ करना है, ब्रांच हेड के साथ, तो ऑर्डर बाय ब्रांच अंडरस्कोर हेड, क्या हो गया ब्रांच अंडरस्कोर हेड में 108 पहले आया, 6 बाद में, 5 बाद में, 4 बाद। अगर डिसेंडिंग निकाल देते हैं तो असेंडिंग में लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट, गॉट इट? रिकॉर्ड सॉर्टिंग हो रहे हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज, हाँ सर। ओके, ऑर्डर बाय जोन, ऑर्डर बाय 3, ऐसे भी थर्ड 3 मतलब थर्ड कॉलम, 3 मतलब थर्ड कॉलम, क्लियर? कॉलम वाइज। तो ये हो गया। आगे दिया है डिस्प्ले लोकेशन डिफरेंस बिटवीन द टारगेट एंड एक्चुअल वैल्यू, टारगेट और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस देखना है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिलेक्ट लोकेशन कॉमा टारगेट माइनस एक्चुअल डिफरेंस, DIFF करके कीवर्ड है, फ्रॉम ब्रांच एंड ऑर्डर बाय डिफरेंस। देखो अभी नाउ सिलेक्ट लोकेशन टारगेट कॉमा करके टारगेट माइनस एक्चुअल, मतलब टारगेट और एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, फिर डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस में स्टोर होगा, और उसी के साथ हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे, ब्रांच ऑर्डर बाय डिफरेंस के हिसाब से ऑर्डर करो। ऑर्डर में आ गया, डिफरेंस दिखा रहा है एक्चुअल वैल्यू और वो वैल्यू माइनस करके टारगेट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, और जो डिफरेंस आ रहा है वो दिखा रहा है, और विथ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस। क्लियर? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ऐसे बहुत सारे ऑर्डर बाय क्लॉज दिए, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। उसके बाद लाइक क्लॉज के हिसाब से भी दिया है, देखो लाइक क्लॉज, एक लाइक क्लॉज देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर डेजिग्नेशंस लाइक ए नाम से चालू होने वाले, तो ए स्टार्टिंग विद ए कोट्स के अंदर A%, ए नाम से डेजिग्नेशन जिसका चालू हो रहा है वो, और ऑर्डर बाय नेम से ऑर्डर करना है, मतलब अल्फाबेटिकल नेम के हिसाब से। एंटर, नेम नहीं है हमारा, नेम के बदले क्या है हमारा, आई थिंक सो एम्प्लॉई E_NO है ना, क्या है हमारा E_ नहीं, नेम है तो फिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, नेम है, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा इसका नाम ही नहीं लिखा टेबल का, EMP1, देखो टेबल का नाम ही नहीं लिखा था, EMP1 वेयर डेजिग्नेशन लाइक A% ऑर्डर बाय नेम, एंटर। तो अभी नेम के हिसाब से अरेंजिंग हो गया, और ए नाम से सर 2 minutes लेफ्ट। या ए अकाउंटिंग डेजिग्नेशन के हिसाब से दिखाई दे, गॉट इट? क्लियर? चलो नेक्स्ट Yes, sir. टाइम हम लोग ये Yes, sir. देख लेंगे, डिस्टिंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, और ये खत्म होके ज्वाइनिंग चालू करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी हम लोग को अटेंडेंस दो फटाफट, और 2 मिनट है, मतलब हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा।
चलो रोल नंबर 1 to 10. 1. हाँ yes 1. 1. हेलो 1 ना. हाँ यस सर. चलो बोलते जाओ फटाफट. 1 to 10. 11 to 20. Sir, 12. 15. 12. 15. हेलो आगे. 21 to 30. 21 to 30. 31 to 40. 40. 36. 40. Okay. 31. 36. 31, 36, 40. 41 to 50. 42. 41. 41. 43. 41, 42, 43. और आगे 51 to 60. 52. 60. 52, 55. 55, 56. 56 है क्या? नहीं ना. 51, 50 सॉरी 51, 55, 52. 52. 51 है क्या? 52. ओके 52, 55. आगे 61 to 70. 68. 70. No, 61. 68, 70, 61. 61, sir. 61. 68 है. 60, 70. 73. 73. 75. 76. 80. 75, 76, 80. आगे 81 to 90. ठीक है. 81 to 90. 91 to 100. 94. Okay. 94. Okay. Yeah. Next one. 94. आगे 94 के बाद 101 to last. कोई नहीं है. ओके. सो ऑल ऑफ यू वन थिंग कि आपका अगर फीस पे नहीं किया हुआ है तो आप थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% तक पे करो आपका फीस. बाकी की फीस क्योंकि कॉलेज से भी शिक्षक से भी वार्निंग आया हुआ है तो आप लोग को क्लास टेस्ट होगा तो बैठने नहीं मिलेगा. इसलिए आप फीस भी पे करो. ओके. सर एग्जाम कब तक होगा सेम 5? सेम 5 का मालूम नहीं लेकिन पहले क्लास टेस्ट होगा अभी 25 मार्क्स का. मे बी अभी हो सकता है एंडिंग में या क्या है तो आप प्रिपेयर रहो. ओके. ओके सर. Okay, sir. चलो 76 भी होगा. ओके सारे हो गए ना अटेंडेंस. कोई बाकी नहीं है ना. नहीं. चलो थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you. थैंक यू.